أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیم تجوید القرآن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ نے اپنے پچھلے لیسن کی تیاری اچھے سے کر لی ہوگی۔ آج کا آپ کا لیسن ہے جیم، ہا، خو، دال اور ذال۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے لیسن کی طرف چلیں، ہمارے چینل پر نیو آنے والوں کو میں بتا دوں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ کو ہمارا چینل بینیفیشل لگا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آئیے اب چلتے ہیں آپ کے لیسن کی طرف۔ ہمارا پہلا حرف ہے جیم۔ زبان کا درمیان جب اوپر تالو سے لگے گا تو جیم ادا ہوگا۔ آسانی کے لیے آپ کہیے جگ یا جگہ۔ جی یہی آپ کی زبان کا درمیانی حصہ ہے جو اوپر تالو سے لگ رہا ہے۔ جیم کی ادائیگی تو سمجھ آ گئی، پر یہ کیا، یہاں ہمیں جیم کے اوپر ایک لمبی ڈنڈی نظر آ رہی ہے جس کا بھی ضرور کوئی مطلب ہوگا۔ جی مطلب بھی ہے اور جیم کی ادائیگی میں یہ ضروری کردار بھی ادا کرے گا۔ ہم اسے مد کہتے ہیں۔ ہمیں اسے ادھر 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جس بھی چیز پہ مد آ جائے اسے ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ 5 الف کے برابر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے پڑھا اس کے ساتھ 1 الف لگا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسے ہمیں 1 الف کے برابر کھینچنا تھا، جسے ہم نے اندازہ لگا کر 1 مٹھی کے برابر کھینچ لیا۔ جبکہ جیم کے ساتھ جیم، یہ میم لگا ہوا ہے اور اوپر ایک ڈنڈی یعنی مد بھی ہے۔ اسے تب تک اب ہمیں پڑھنا ہے جب تک ہماری 5 انگلیاں نہیں کھل جاتی۔ جو 1 الف والی حروف تھے انہیں ہم نے تب تک پڑھا تھا جب تک ہماری مٹھی مکمل بند ہو کے مکمل نہیں کھل رہی تھی، اور اسے اب ہمیں تب تک پڑھنا ہے جب تک ہماری انگلیاں ایک ایک کر کے ہم نہ کھول لیں۔ آپ جہاں اپنے نوٹس میں جیم لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی مد لگا لیں، یعنی کہ جیم کے اوپر ایک لمبی ڈنڈی لگا لیں اور ساتھ ہی جیم یہ میم لکھ لیں۔ چلیں اب اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ زبان کی پوزیشن کا خیال رکھیں، اپنی مٹھی بند کریں اور ایک ایک کر کے جب تک 5 انگلیاں نہ کھل جائیں پڑھیں۔ جیم، پھر سے جیم، پھر سے جیم۔ جیم کو ہم نے اچھے سے پڑھ لیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جن حروف کے ساتھ الف لگا ہوتا ہے، جیسے کہ با کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو انہیں ہم 1 مٹھی کے برابر کھینچتے ہیں، یعنی 1 مٹھی بند کرتے ہیں اور کھول لیتے ہیں، یہ ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کے اوپر لمبی ڈنڈی لگی ہوتی ہے ان کو ہم تب تک کھینچتے ہیں جب تک ہماری 5 انگلیاں ایک ایک کر کے نہیں کھل جاتی۔ مثال کے طور پر الف، با، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا تھا کیونکہ ان کے ساتھ الف لگا ہوا تھا، اور جن حروف پر لمبی ڈنڈی یعنی مد ہوگا انہیں ہم تب تک پڑھیں گے جب تک ہماری 5 انگلیاں ایک ایک کر کے نہیں کھلتی۔ یہ ہمارا اندازہ ہے۔ مثال کے طور پہ جیم، دال، ذال۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگلا حرف کیسے پڑھنا ہے۔ ہمارا اگلا حرف ہے ہا۔ ہا ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر ہا میں ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہا پراپر ادا ہو رہا ہے یا نہیں،
इसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये तरीका इंशाल्लाह बहुत आसान रहेगा और इससे आप खुद पता कर पाएंगे कि आपके हलक के दरमियान में से जो है वो हा अदा हो भी पा रहा है या नहीं। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको अपने नरखरे पर उंगली रखनी है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप जब कहेंगे ना हा हा, तो आपका नरखरा थोड़ा सा स्लिप होके ऊपर की जानिब जाएगा, जिससे अगर आप परफेक्ट पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर आपका नरखरा ऊपर की जानिब जाएगा। और अगर परफेक्ट नहीं होगा तो आपको हो सकता है कि बस मूवमेंट महसूस हो पर वो चीज़ ना फील हो, जैसे कि मैं कह रही हूँ। ठीक है। इसके साथ भी देख लें एक अलिफ लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि हमें हा को एक मुट्ठी के बराबर यानी एक अलिफ के बराबर खींचना है। अपनी मुट्ठी बना लें और चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हा, फिर से हा, फिर से हा। हा की अदायगी में अक्सर लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरे पास एक टिप है। सुबह जब आप उठें तो उस टाइम पर आप नीम गर्म पानी से गरारे करें और फिर कहें हा हा। तो अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे गरारे करके तो मुझे लगता है इसके बाद हा अदा होकर ही रहेगा। आगे चलते हैं खौ की तरफ। खौ हलक के शुरू से जो मुंह की जानिब है अदा होता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं। पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि हमने इस पे एक वाइट डॉट का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपको पता चले कि खौ हमारे हलक की किस जगह से अदा होगा। ठीक है। तो खौ के लिए ज़रूरी है कि हम खौ को पढ़ते हुए अपनी ज़बान का पिछला हिस्सा भी उठाएं। ठीक है। और क्योंकि पिछला हिस्सा उठाने से ये जो हमारा खौ है ये हैवी हो जाएगा, और क्योंकि खौ हैवी लेटर है तो हमें इसे हैवी ही अदा करना होगा। इसके अलावा जो है वो खौ में हलक की एक रगड़ पाई जाती है। इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है वो सोते हुए खराटे लेते हैं इस तरीके से ना, तो ये बिल्कुल ऐसे है। इसमें जो है थोड़ी सी खराटे की आवाज स्टार्टिंग में पैदा होती है, या कह लें कि हलक की जो है वो रगड़ पहले पैदा होती है और फिर वर्ड आता है। अपनी जबान का पिछला हिस्सा उठाना ना भूलिए, उससे ये हुर्फ हमारा हैवी हो जाता है। चले अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप चाहे तो वीडियो स्टॉप करके मतलब जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पहले कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस की तरफ बढ़े। ठीक है। इसके साथ एक अलिफ लगा हुआ है। अब आप जब भी नोट्स में लिखें तो लिखते जाएं इसको इसी तरीके से। ठीक है। एक अलिफ लगा हुआ है जिसका मतलब है इसे हमें एक अलिफ के बराबर खींचना है। अपनी मुट्ठी बना लें और जब तक मुट्ठी ना खुले इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। चलें। खो, फिर से खो, फिर से खो। अच्छा, ये खे नहीं है, खे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसे खे कर देते हैं, खो खो। ये खो नहीं है बल्कि ये खो है, और इसकी अदायगी प्रॉपर ही होनी चाहिए। आपकी जो तैयारी है वो हर बार प्रॉपर नजर आनी चाहिए, यानी कि आपको एक भी चीज ऐसी ना लगे कि छूट गई है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है। उम्मीद है कि खौ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले लेटर की तरफ, जो है दाल। ठीक है। दाल की अदायगी हमें बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे हमने ता को पढ़ा था। आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब हमारी जबान की नोक हमारे ऊपर के सामने वाले दो दांतों की जड़ पर लगेगी तो दाल अदा होगा। ये बहुत इजी है। हमें इस पर मद नजर आ रहा है, जिसका मतलब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे 5 अलिफ बराबर खींच के पढ़ना होगा। अब हमारी 5 अलिफ बराबर क्या है? हमारी 5 अलिफ बराबर है हमारी 5 उंगलियां, जिसे हम बंद कर लेंगे, और जब तक हमारी एक एक करके पूरी उंगलियां नहीं खुल जाती तब तक हम इसे पढ़ेंगे। हम जल्दी से इसकी प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं।
तो अगर आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करें और देख लें कि किस तरीके से आपको ज़बान की पोजीशन रखनी है। अव्वल तो आपने अगर ता की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें चलते हैं। मैं अपनी मुट्ठी बंद कर चुकी हूँ। दाल, फिर से दाल, फिर से दाल। अल्हम्दुलिल्लाह हम दाल को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम अपने अगले लेटर को पढ़ेंगे जो कि है दाल। दाल की अदायगी हमें बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे हमने सा को पढ़ा था। आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब हमारी जबान की नोक हमारे ऊपर के सामने वाले दो दांतों के सिरे पर लगे या दोनों दांतों के दरमियान जबान की नोक आ जाए तो दाल अदा होगा। ये नरमी वाला लेटर है। याद रखें, नरमी जितनी ज्यादा होगी दाल उतना ही परफेक्ट अदा होगा। हमें इस पर मद नजर आ रहा है। जैसे कि आपने देखा दाल वाली दफा में भी ता और दाल की पिक्चर सेम थी, लेकिन फर्क क्या था कि ता को हमें नहीं खींचना था क्योंकि उस पे उसके साथ अलिफ था, जबकि दाल पे मद था तो हमने उसे ज्यादा खींचा। इधर भी वही सेम हो रहा है कि दाल पर जो है वो मद है जबकि था पर नहीं था। तो बस हमें पैटर्न सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से हम दोनों को पढ़ रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि हमने ता को इतना नहीं खींचा था, एक मुट्ठी के बराबर खींचा था, और दाल को हम अब उतना खींचेंगे जब तक हमारी पांचों उंगलियां नहीं खुल जाती। ये बात में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है ना मद वाली कि मद को किस तरीके से खींचना है। अच्छा, अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे और फिर प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे क्योंकि ये मुझे लगता है आसान है। अच्छा, अब आप अपनी मुट्ठी बंद कर लें। मैं अपनी मुट्ठी बंद कर चुकी हूँ और मैं पढ़ रही हूँ। अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो वीडियो स्टॉप करके पहले अच्छे से देख लें किस तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। चलें। ज़ाल, फिर से ज़ाल, फिर से ज़ाल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन इधर मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमेशा की तरह अब आप अपने स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे होंगे जिस पे आप तजवीद से रिलेटेड कोई भी सवाल कर सकते हैं थ्रू वॉइस मैसेज। और याद रखिए कि ये फैसिलिटी सिर्फ सिस्टर्स के लिए है। आखिर में मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं जो कि मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताई थी। तो टिप्स कुछ ऐसे हैं। नंबर 1, लेसन तरतीब से देखिए और तरतीब से याद करें। नंबर 2, नोट्स बनाएं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, तैयारी करने के लिए हमेशा अलग थलग और पुरसुकून जगह का इंतखाब कीजिए। नंबर 4, लेसन फजर के बाद या फ्री टाइम में याद करें। नंबर 5, याद इतनी आवाज से करें कि आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंचे। नंबर 6, तैयारी कम से कम 30 मिनट्स करें। नंबर 7, तैयारी मुकम्मल होने के बाद किसी दूसरे के मोबाइल में अपना सबक रिकॉर्ड करें और अपनी वॉइस को मेरी वॉइस से मैच करें। इस तरह आप अपनी करेक्शन खुद कर सकेंगे। और साथ ही अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हैं और ये आपके लिए कितनी आपको तजवीज़ समझने में ये कितनी मदद दे रही हैं, क्योंकि ये खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए और आप लोगों की हेल्प के लिए ही किया जा रहा है तजवीज़ में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।